سیراکیوس اور ایفیسس دو باہمی پڑوسی ملک تھے، لیکن بہت سے اختلافات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے بادشاہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ انہوں نے ایک ملک کے شہریوں کو دوسرے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بہت سخت قوانین نافذ کیے تھے۔ اس کے تحت اگر سیراکیوس کا کوئی بھی شہری ایفیسس کی حدود میں پایا گیا تو اسے 1000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں شہری کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس لیے لوگ سرحد پار کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن اس قانون کو نہ جاننے والوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ سیراکیوس میں ایجین نام کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ افسس میں گھومتے ہوئے پکڑا گیا۔ ایفیسس کے قانون کے مطابق اسے جرمانہ ادا کرنا پڑا، لیکن اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے اسے حتمی فیصلے کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مہاراج، یہ شخص ساراکیز کا رہنے والا ہے، ہم نے اسے محل کے قریب سے پکڑا ہے، لیکن اس کے پاس جرمانہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیں اس کو کیا سزا دی جائے؟ سٹی پولیس والے نے سر جھکا کر سوال کیا۔ بادشاہ نے ایجیون سے مخاطب ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ایجین، اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا تم پر لگائے گئے الزامات سچے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ سیراکیوس کے لوگوں کو ایفیسس آنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے؟ بادشاہ نے پھر پوچھا۔ ہاں، مجھے یہاں کے قانون کا علم تھا، اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ پھر بھی تم نے ایسا جرم کیا ہے؟ ایجیون، اس جرم کے لیے قانون کے مطابق تم تو جرمانہ ادا کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ تاجر نے ترس بھری آواز میں کہا، مہاراج، مجھے جلد از جلد سزائے موت دے دیں تاکہ میں اس دکھی زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکوں۔ میں اب مزید جینا نہیں چاہتا۔ ایجین کی باتیں سن کر بادشاہ حیرت سے بھر گیا۔ آج تک جتنے مجرم اس کے سامنے آئے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا اور کوئی سزا نہ دینے کی درخواست کی، لیکن وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے منہ سے سزا دی کی بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ بادشاہ نے حیرت کا اظہار کیا، بولا، ایجین، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں موت کو قبول کرنے سے بھی نہیں کتراتی؟ بتاؤ، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ مہاراج، میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے؟ میری کہانی اتنی دکھ کی ہے کہ سن کر آپ کا دل بھی کانپ جائے گا، اس لیے بلا تاخیر مجھے سزا دیں۔ ایجین اداس لہجے میں بولی۔ اب بادشاہ کے ذہن میں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش اور بھی پختہ ہو گئی۔ اس نے درباریوں کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس ہو رہے تھے۔ اس نے پہلی بار ایسا نڈر شخص دیکھا تھا جو موت مانگ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے پھر کہا، ایجین، تم بلا جھجک بولو، ہم تمہاری کہانی سنے بغیر تمہیں کبھی سزا نہیں دے سکتے۔ پھر ایجین نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ ایجیون کا باپ سیراکیوس کا ایک امیر سوداگر تھا۔ اس کا کاروبار کئی ممالک میں پھیل گیا۔ اس کی موت کے بعد ایجین نے ان کے تمام کاروبار کی دیکھ بھال کی۔ ایک دفعہ انہیں کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کا موقع ملا۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سامان سے بھرا جہاز لے کر اپیدامینم نامی قصبے میں پہنچا۔ اسے وہ شہر بہت پسند تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کا سارا سامان فروخت ہو گیا اور اس کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی۔ اس نے واپسی کا خیال ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ دونوں بچے شکل اور جسامت میں بالکل ایک جیسے تھے۔ ایجیون اور اس کی بیوی کے لیے بھی ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ جس دن ایجین کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، اس نے بھی بیک وقت 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ اس کے بیٹے بھی شکل و صورت میں ایک جیسے تھے۔ وہ درخت اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس اپنے بیٹوں کو کھلانے اور پالنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ ایسے میں ان کی پرورش اس کے لیے ناممکن تھی۔
चुनांचे इसने ईजैन से अपने बेटों को गोद लेने की दुआ की। ईजीवन की बीवी का दिल पिघल गया। इसकी दरख्वास्त पर उसने गरीब तरी के बेटे को गोद लिया। ईजीवन ने अपने दोनों बेटों का एक ही नाम रखा था, एंटीफोलिस। उसने अपने ले पालक बेटों का भी यही नाम रखा। वो उसे ड्रोमियो कहता था। इस तरह उनके 4 बच्चे हुए। एक बार ईजैन को कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाने का मौका मिला। वो अपनी बीवी और 4 बच्चों से बहुत प्यार करता था। उनके बगैर ज्यादा देर तक रहना इसके लिए नामुमकिन था, इसलिए वो उन्हें साथ लेकर जहाज में सवार होकर दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हो गया। चंद माह के सफर के बाद उसे साहिल नजर आने लगा। 1 या 2 दिन बाद हम साहिल पर होंगे। इसके बाद हम जहाज का सारा सामान फरोख्त करके वतन वापस आ जाएंगे। ये सोचकर ईजैन अपने दिल में खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन खुदा के ज़हन में कुछ और था। इसी रात समंदर में एक खौफनाक तूफान आया। ऊंची लहरों का जहाज वो उसे निगलने के लिए बेचैन हो गई। एक छोटा जहाज कब तक उनका मुकाबला कर सकता था? देखते ही देखते ये देखकर इसका एक हिस्सा टूट गया। इसमें तेजी से पानी भरने लगा। मुसाफिरों ने समझा कि जहाज किसी भी वक्त डूब जाएगा। चुनांचे वो अपनी जान बचाने के लिए छोटी कश्तियां लेकर पानी में चले गए। जहाज में सब अकेले सफर कर रहे थे, इसलिए पीछे मोड़कर देखना भी जरूरी ना समझा। सिर्फ ईजैन अपने खानदान के साथ पीछे रह गया। उसने 2-3 लकड़ी के तख्तों को जोड़कर जल्दी से 2 कश्तियां तैयार कीं। फिर इसने अपनी बीवी, एक एंटीफोलिस और एक ड्रोमियो को कश्ती में बिठा दिया। वो बाकी 2 बच्चों के साथ दूसरी कश्ती में सवार हुआ। दोनों कश्तियां कुछ फासले तक एक साथ तैरती रहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी के तेज धारों की वजह से वो मुखालिफ समतों में बहते चले गए। फिर ईजैन ने एक कश्ती देखी। जहाज में सवार मल्लाह इसकी बीवी और बच्चों को अपनी कश्ती में ले गए। उन्हें महफूज देखकर ईजैन के चेहरे पर बेपनाह सुकून नमूदार हुआ। कुछ देर बाद एक और कश्ती ने उसे और उसके बच्चों को भी बचा लिया, लेकिन इस दिन से वो एक दूसरे से बिछड़ गए। उसने अपनी बीवी और बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। चल दिया थककर ईजीवन ने उनसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने दोनों बेटों पर मरकूज कर दी। अब वो इसका वाहिद खानदान थे। वक्त गुजर गया। एंटीफोलिस और ड्रोमियो बड़े हुए। एक बार एंटीफोलिस ने अपने वालिद से अपनी मां के बारे में पूछा। ईजैन उन्हें माजी में पेश आने वाले वाक़ये के बारे में आगाह नहीं करना चाहता था, लेकिन बार बार पूछने पर इसने आखिरकार उसे सारी कहानी सुना दी। इसी दिन से एंटीफोलिस ने अपनी मां और भाइयों को तलाश करने का फैसला किया। उसने पुरजोश अंदाज में कहा, अब्बा, मुझे इस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं अपनी मां और भाइयों को ना ढूंढूं। वो जहां भी होंगे मैं उनकी तलाश करता रहूंगा। मेहरबानी फरमाकर मुझे बरकत दें ताकि मैं इस काम में कामयाब हो सकूं। ईजैन पहले ही अपनी बीवी और 2 बच्चों को खो चुके थे। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बेटों को इससे छीन सके, लेकिन एंटीफोलिस अटल था। बिलाखिर ईजैन को इजाजत देने पर मजबूर किया गया। अगले ही दिन वो ड्रोमियो को साथ लेकर उनकी तलाश के लिए निकला। दिन गुजरते गए। ईजैन उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी वो वापस नहीं आए। ईजैन का दिमाग किसी नाखुशगवार खौफ से कांप रहा था। जब वो मजीद बर्दाश्त न कर सका तो वो भी अपने बेटों की तलाश के लिए निकल पड़ा। उनको ढूंढते ढूंढते वो एफसस शहर पहुंचा, जहां सिपाही इसे पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। ईजैन की कहानी सुनकर बादशाह की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। अदालत में मौजूद हर शख्स जज्बाती नजरों से उसे देख रहा था। बादशाह ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, ईजैन, मुझे अफसोस है कि तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन हम कभी नहीं समझ सकते कि खुदा क्या करना चाहता है। मैं इससे दुआ करता हूं कि आप अपने खानदान को जल्द वापस कर दें। कानून बदल दो। मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत दे सकता हूं,
इस एक दिन में जुर्माना जमा करो, इसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बादशाह के इस फैसले का ईजैन पर कोई असर नहीं हुआ। ये शहर इसके लिए बिल्कुल अनजान था। एक दिन तो छोड़ी, वो एक माह में 1000 रुपए भी जमा न कर सका। अगर कोई इसे मतलूबा रकम दे भी देता तब भी इसे लगा कि इसकी जिंदगी बेमानी है। इसलिए इस दिन इसने पैसे जमा करने के बजाय अपने बेटों की तलाश को ज्यादा मुनासिब समझा। वो महल से निकलकर बाजार की तरफ आया। अपने बेटों को तलाश करने की ये इनकी आखिरी कोशिश थी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना चाहता था। दूसरी जानिब बरसों पहले मल्ला ईजैन की बीवी और बेटों को बचाकर इफिसस शहर ले आए थे। एक किस्म है और इंसान दोस्त अमीर ने बच्चों को गोद ले लिया, उनको बेटों की तरह पाला और बहुत कुछ सिखाया, लिखा और उनके आराम का पूरा ख्याल रखा। नौजवानी में अपनी काबिलियत की वजह से जल्द ही फौज में भर्ती हो गए, आला ओहदों पर तैनात हुए। फिर वानफिलिस ने वहां की एक खूबसूरत और शरीफ लड़की से शादी की लिया। इस तरह दोनों भाई उफसस में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इसके वालिद और भाई जिंदा हैं। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था। इत्तेफाक से जिस दिन ईजीवन को असीर कर लिया गया, इसी दिन छोटा वानफिलिस और ड्रोमियो भी घूमते फिरते इफिसस पहुंच गए। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने सुना कि एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर इफिसस में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसने सोचा भी नहीं था कि वो शख्स उसका बाप होगा। कुछ दिन वहां रहने का फैसला करके एक सराय में पहुंच गए। सराय के मालिक ने इसका तारुफ पूछा तो इसने खुद बताया कि वो इसी शहर का शहरी है। उसने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। कुछ देर आराम करने के बाद एंटीफाल्स ने ड्रोमियो को जरूरी चीजें खरीदने के लिए बाजार भेज दिया। इसके बाद शहर के बारे में मालूमात हासिल करें वो भी सराय से निकल गया। फिर वानफिलिस ने ड्रोमियो को देखा, वो तेज तेज चलता उसकी तरफ आ रहा था। एंटीफाल्स ने हैरानी से कहा, इसे बाजार गए हुए काफी अरसा हुआ था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? उसने ड्रोमियो के बैग की तरफ देखा, लेकिन वो खाली हाथ था। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे डांटा, ड्रोमियो ने निहायत धीमे लहजे में कहा, कैप्टन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम हो? चिल्लू, घर चलते हैं। तुम्हारी बीवी खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसकी बातें सुनकर एंटीफाल्स चौंक गया, फिर गुस्से से बोला, ड्रोमियो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी शादी नहीं की थी, तो मेरी बीवी कहां से आ गई? ड्रोमियो, ये हंसी, ये कोई वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें सामान लाने भेजा था, खाली हाथ क्यों लूटे? इस बार ड्रोमियो हैरान हुआ और बोला, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? आपकी बीवी खाने के लिए बुला रही है। मजाक कहां से आया? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आपने मुझे कौन सा सामान लाने को कहा था? अच्छा, अब तुम्हें यह भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या लाने को कहा था? ड्रोमियो, बहुत मजा आ गया। अब खामोशी से जाकर अपना काम खत्म करो और बार बार बीवी बीवी का नारा मत लगाना। बीवी रखो, एंटीफाल्स ने उसे डांटा। दरहकीकत ये बड़ा ड्रोमियो था, जिसने छोटे एंटीफाल्स को बड़े एंटीफाल्स के लिए गलत समझा। यहां वानफिलिस बड़े ड्रोमियो को डांट रहा था, इसे छोटा ड्रोमियो समझकर। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा। एंटीफाल्स के अजीब और गरीब रवैये को देखकर ड्रोमियो ने सोचा कि बीवी से लड़ाई के बाद कप्तान को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन भाभी ने मुझे उनको लाने को कहा है, तो मैं उन्हें ही ले जाऊंगा। ये सोचकर वो उसे घर जाने की दरखास्त करने लगा। आखिर एंटीफाल्स गुस्से में आ गया और बड़े ड्रोमियो का हाथ पकड़ते हुए बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। ये जानते हुए भी कि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूं, तुम बार बार बीवी बीवी कह रहे हो। पहले आओ कि मुझे इस लड़की से मिलने दो जिसे तुम मेरी बीवी कह रहे हो, इसके बाद मैं इसे सीधा कर दूं। ये कहकर वो ड्रोमियो के साथ चल पड़ा। रास्ते में एक बाजार था।
उस वक्त वहां काफी सरगर्मियां थीं। वानफिलिस और ड्रोमियो भीड़ से अलग हो गए। वानफिलिस ने अर्ध गिर्द देखा, लेकिन ड्रोमियो कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर छोटा ड्रोमियो इससे टकरा गया। उसने इसे डांटा और कहा कि तुम मुझे भीड़ में छोड़कर कहां चले गए थे? चुल्लू, मुझे कहां ले जा रहे थे? ड्रोमियो ने आंखें झपकते हुए कहा, क्या तुम भूल गए हो? तुम ही थे जिसने मुझे बाजार में सामान लाने के लिए भेजा था, और मैं तुम्हें सराय में छोड़ आया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? एंटीफल्स का गुस्सा बढ़ गया। ड्रोमियो, तुम मुझे सराय से ये कहकर लाए हो कि मेरी बीवी रात के खाने के लिए बुला रही है, और यहां आकर तुम कहते हो कि तुम यहां सामान खरीदने आए हो। मुझे ऐसे मुज़क्क़ाखेज़ लतीफ़े पसंद नहीं। मैंने कब कहा कि तुम्हारी बीवी कॉल कर रही है? क्या मैं नहीं जानता कि तुम अभी नशे में हो? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ड्रोमियो ने आहिस्ता से कहा। जब वो दोनों बाजार में मसरूफ थे, कप्तान की बीवी अपने शौहर की मुंतज़िर थी। ड्रोमियो अब वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आज तक कप्तान उसे नहीं लाया। जब वक्त खत्म हुआ तो वो खुद अपने शौहर को घर लाने के लिए निकली। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, उसने नन्हे एनफिलिस और छोटे ड्रोमियो को एक दूसरे से बातें करते देखा। वो उसे कप्तान समझकर करीब आई और कहने लगी, तुम यहां क्यों हो? मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया था, लेकिन लगता है तुम बहुत नाराज हो, इसीलिए बुलाने पर भी नहीं आए। वानफिलिस एक नौजवान औरत से अपने लिए शौहर का लफ्ज सुनकर हैरान रह गया। उस वक्त पास खड़े लोग इसी तरफ देख रहे थे। ये इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था कि कोई अनजान लड़की उसे शौहर कहे। वो गुस्से में आ गया और गुस्से से बोला, तुम कौन हो जो मुझे बार बार शौहर कहकर मुखातिब कर रहे हो? मेरी कोई बीवी नहीं है। लड़की एक लम्हे के लिए हक्का बका रह गई। फिर वो पुरसुकून हुई और कहने लगी, तुम जो भी कहो, तुम इस हकीकत को नहीं बदल सकती कि तुम मेरे शौहर हो। बाजार के बीचों बीच इस तरह लड़ना ठीक नहीं। तुम मेरे साथ घर चुल्लू तो बेहतर होगा, तब हमें सुकून मिल सकता है। चुल्लू, ड्रोमियो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंटीफॉल्स कुछ समझने से कासिर था। उसने सर खुजाकर सोचना शुरू किया कि वो परदेस में बहुत मुश्किल हालात में फंस गया है। ये लड़की खुद को अपनी बीवी कह रही है और ड्रोमियो को अपनी बीवी के पास जाने को भी कह रही है। मुझे किसी तरह इस औरत से खुद को बचाना है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पास खड़ा एक आदमी बोला, जनाब, अब घर से मुताल्लिक मामलात बाजार में क्यों उठा रहे हैं? अगर आपकी बीवी से कोई गलती हुई है तो घर जाकर उसे समझाएं। आप ऐसे हैं जैसे ये किसी पढ़े लिखे शख्स को जेब नहीं देता। कुछ और लोगों ने भी उनकी बात की तायद की। उस सूरत हाल मजीद नाजुक हो चुकी थी। अब तक सिर्फ लड़की ही इसका पीछा कर रही थी, लेकिन अब वहां से गुजरने वाले लोग भी इसका साथ दे रहे थे। एंटीफल्स समझ गया कि अगर वो लड़की के साथ न गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। वैसे भी वो परदेसी है। ये सोच कर के उसे बदले में कुछ देना पड़ेगा, उसने लड़की के साथ जाने का फैसला किया। लड़की ने इसका हाथ पकड़ा और उसे घर की तरफ खींच लिया। एंटीफल्स भारी कदमों से इसके पीछे पीछे आ रहा था। ड्रोमियो भी उनके साथ था। घर पहुंचने के बाद लड़की ने प्यार से वानफिलिस को एक कुर्सी पर बिठाया और ड्रोमियो से कहा, जाओ, तुम भी जाकर खाना खाओ। तुम्हारी बीवी काफी दिनों से भूखी और प्यासी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहकर वो आई और एंटीफॉल्स के पास बैठ गई और प्यार से बातें करते हुए इसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। उसने हिचकिचाते हुए खाने का लुक्मा हल्क से नीचे उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ ड्रोमियो जैसे ही किचन में पहुंचा तो एक मुलाजमा ने मास्टर कहते हुए इसे गिले लगा लिया। छोटा ड्रोमियो भागा और कुछ फासले पर खड़ा हो गया। खौफ की वजह से इसकी सांसें भारी होने लगीं। सारा मामला उसकी समझ से बाहर था। नौकरानी ने हैरत से कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे गिले मिलने की वजह से तुम ऐसे हो जैसे किसी और की बीवी को गिले लगा लिया हो। आओ, अब जाकर खाना खा लो।
एंटीफल्स बाहर खामोशी से खा रहा था, इसलिए इसे भी खाने पर कोई एतराज नहीं था। वो अपनी सीट पर बैठकर खाना खाने लगा। इसी दौरान बुजुर्ग एंटीफॉल्स और बुजुर्ग ड्रोम्यू घर वापस आए और दरवाजे पर दस्तक देने लगे, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। काफी देर तक बाहर खड़े रहने के बाद बुजुर्ग एंटीफॉल्स ने कहा कि लगता है बीवियां देर से घर आने पर हमसे नाराज हैं, इसलिए हमें उनको मुतमईन करने के लिए कुछ तहाइफ लेकर आना चाहिए। ड्रोम्यू ने अपनी बात की तायीद की और फिर वो दोनों वापस बाजार की तरफ चल पड़े। यहां रात का खाना खाने के बाद छोटे एंटीफल्स और ड्रोम्यू वहां से भागने का सोचने लगे। कुछ देर बाद जब दोनों तीनों गहरी नींद में सो गए तो आहिस्ता आहिस्ता उठकर वहां से भाग गए। नन्ना एंटीफॉल्स अभी कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुनार से हुई। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आया और एक डब्बा पकड़ा कर बोला, ये लो कैप्टन साहिब, अपनी अमानत का ख्याल रखें। मैं इसे देने आपके घर जा रहा था। अच्छा हुआ कि अब से यहां मुलाकात हुई। आपको ये जवाहर नहीं मिलेगा। पूरे शहर में कहीं भी सोने का हार वो आपको मिल जाएगा। आप इस हार की कीमत दुकान पर ही भेज दें। ये कहकर वो शख्स चला गया। वान फिलिस हैरान खड़ा था। सुबह से रूनुमा होने वाले वाकयात उसके जहन में बार बार दोहरा रहे थे। वो इस शहर में पहली बार आया था, लेकिन सब उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे वो इसे बरसों से जानते हों। सुनार ने भी उसके जाने बगैर इतना कीमती हार उसके हवाले कर दिया था। इतने में एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने नन्हे एंटीफॉल्स को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी वजह से है कि मेरा बेटा बेगुनाह साबित हुआ है और जेल से रहा हुआ है। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। बुढ़िया के जाने के बाद एक नौजवान वहां आया और बड़ी मोहब्बत से इससे मिला। वो नौजवान भी उसके साथ किसी जानने वाले जैसा सलूक कर रहा था। फिर एक आदमी आया और इसे अपने बेटे की शादी का दावतनामा दिया और इसे अपने घर वालों समेत शादी में आने को कहा। एक और शख्स ने इसे मोहरों का थैला दिया और कहा कि कैप्टन साहब, आपने बरवक्त मेरी मदद की और मुझे बचाया। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। ये लो, अपनी रकम कबूल कर ले। एंटीफॉल्स ये समझने से कासिर था कि क्या हो रहा है। दरहकीकत बुजुर्ग वान फिलिस इसी शहर में तालीम याफ्ता और पले बड़े थे, इसलिए शहर में तकरीबन सभी उसे अच्छी तरह जानते थे। नौजवान एंटीफॉल्स बिल्कुल अपने भाई जैसा था। यही वजह थी कि लोग उन्हें कैप्टन साहब मान रहे थे। वो अभी चंद कदम ही चला था कि एक लड़की उसके पास आई और प्यार से कहने लगी, भाई, क्या तुमने मेरा हार बनवाया? चिल्लू हार कहाँ है? मैं बहुत बेताबी से इसका इंतजार कर रहा था। ओ, तो मेरा खाना इस डब्बे में है। जैसे ही लड़की ने इसके हाथ से डब्बा लिया, वान फिलिस गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने इसका हाथ हटाया और चलाया। मैं कल ही इस शहर में आया हूं और एक ही दिन में मेरे इतने रिश्तेदार आ गए हैं। कोई अपने आप को मेरी बीवी और कोई अपनी बहन कहता है। सच बताओ, तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि अब सब मिलकर मुझे धोखा देना चाहते हैं। ये कहकर एंटीफॉल्स वहां से भाग गया। लड़की ने सोचा कि किसी सदमे की वजह से इसका भाई इसे पहचान नहीं पा रहा है। इसी लम्हे वो तेजी से घर की तरफ भागी। वहां पहुंचते ही इसने रोते हुए अपनी भाभी से कहा कि भाभी, भाई पागल हो गया है। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या कह रहे हो? कैप्टन साहिब, आपने मुझे कहां ढूंढा है? शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। पता नहीं वो किस किस्म की बकवास कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि मैं इसमें था। शहर में नया हूं, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कप्तान की बीवी उदास लहजे में बोली, भाई अभी बाजार गए हैं, तुम जल्दी जाओ और उन्हें घर ले आओ। इस पागलपन में कहीं उल्टा मत बैठो। और कप्तान की बीवी इसी लम्हे बाजार की तरफ भागी। इस वक्त बुजुर्ग एंटीफॉल्स एक तोहफा लेने सुनार की दुकान पर पहुंचा और इसे हार दिखाने को कहा। सुनार ने हंसते हुए कहा, कैप्टन साहिब,
लगता है आप इन दिनों बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। मैं अब आपको हार दिखाता हूं, लेकिन अब पहले का पिछला कर्ज अदा कर देते तो बेहतर होता। पिछला कर्ज? तुम किस कर्ज की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे क्या कर्ज लिया है? कप्तान ने हैरत से पूछा। भर कर पूछा। इतनी जल्दी भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें जवाहरात से जड़ा सोने का हार दिया था। थोड़ी देर पहले? क्या कह रहे हो? आज हमारी पहली मुलाकात है, तुमने हार किसी और को दिया होगा। मैं आज सुबह इस तरह कभी नहीं आया। कप्तान ने फिर कहा, कैप्टन साहब, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। मैंने खुद वो हार आपको दिया है। मेरी आंखें आपको धोखा नहीं दे सकती। इस बार सुनार पुरजोश हो गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान लड़ाई बढ़ती गई। बिलाखिर मामला थाने पहुंच गया। थानेदार ने दोनों को जेल में डाल दिया। दूसरी जानिब कप्तान की बीवी उसे ढूंढती हुई सुनार की दुकान पर पहुंच गई। वहां उसे मालूम हुआ कि इसके शौहर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। वो इसी लम्हे थाने पहुंची और पुलिस अफसर से कहा, मेरा शौहर बिल्कुल बेकसूर है, वो कोई जुर्म नहीं कर सकता, उसने नादानिस्ता कोई गलती की होगी। वैसे भी आज सुबह से वो अजीब व गरीब सुलूक कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो पागलपन का शिकार है। तुम उसे छोड़ दो ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। पुलिस अफसर ने उसकी बातों पर यकीन किया और कप्तान को पागल समझकर वहां से चला गया। घर आकर कप्तान की बीवी ने नौकरों से कहा कि कप्तान को रस्सियों और जंजीरों से बांधकर अभी कमरे में बंद कर दो। वो पागल हो गया है। मैं फौरन डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराऊंगी। एंटीफल्स चीखता रहा कि वो पागल नहीं है, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। वो कमरे में दरवाजा बंद करने के बाद कप्तान की बीवी डॉक्टर को लेने चली गई। जब वो डॉक्टर से घर वापस आ रही थी तो उसने बाजार में एक छोटा सा एंटीफॉल्स देखा। उसने सोचा कि वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया है। डॉक्टर साहब, वो मेरे शौहर हैं। फिर वो दौड़कर उसके पास पहुंची कि कैप्टन साहब। वान फिलिस ने आवाज की समत देखा तो उसे कप्तान की बीवी नजर आई। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो चौंक गया। वो समझ गया कि फिर ये औरत इसे जबरदस्ती अपने घर ले जाएगी। तो उसने आदेर अलिफादेर देखा, सर पर पांव रखा और अलिफाल्ट समत भागा। इसे भागते देखकर कप्तान की बीवी चलाई, उनको पकड़ो, खुदा के वास्ते उन्हें पकड़ो, ये पागल हैं। नौजवान एंटीफोलिस अपने लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज पागल सुनकर घबरा गया। वो तेजी से भागा और एक मंदिर में छप गया। मंदिर में एक काहिन रहती थी। एंटीफॉल्स ने इसे अपनी पूरी कहानी मुख्तसरा बताकर उससे मदद मांगी कि इसने ये भी बताया कि एक चालाक औरत उसे जबरदस्ती अपना शौहर बनाकर घर ले जाना चाहती है। वो पादरी के कदमों पर गिरा और पुकारा, माँ, मुझे इस बदकार औरत से बचा। जैसे ही पुजारी ने माँ का लफ्ज सुना, इसके दिमाग में प्यार का एक समंदर भर गया। उसने एंटीफल्स के सर को सहलाते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, डरो नहीं बेटा, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम जाकर साथ वाले कमरे में छप जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो जल्दी से साथ वाले कमरे में छप गया। तभी कप्तान की बीवी मंदिर में आई और हाँफते हुए बोली, माँ, मेरा शौहर इस तरफ आया है, अपने इसे देखा होगा। बरा करम मुझे बताएं कि वो कहाँ है। इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मैं इसे घर ले जाना चाहती हूँ। काहिन ने इसे समझाया और कहा, बेटी, वो तुम्हारा शौहर नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, मैं उसे कभी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती, बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। लेकिन कप्तान की बीवी अटल थी। वो अपने शौहर को लिए बगैर वहां से वापस नहीं जा सकती थी। वो जोर जोर से रोने लगा। इसके रोने की आवाज सुनकर वहां भीड़ जमा होने लगी। लोग धीमे लहजे में तरह तरह के सवालात करने लगे। इस तरह पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया। दूसरी जानिब बादशाह की तरफ से ईजैन को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। उसने अभी तक जुर्माना अदा नहीं किया था।
اس لیے بادشاہ نے اسے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں کا قاعدہ یہ تھا کہ بادشاہ پھانسی کے گھر جانے کے بعد ہی سزائے موت دیتا تھا۔ شہر کا واحد پھانسی گھر مندر کے قریب بنایا گیا تھا، جہاں پجاری اور کپتان کی بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا۔ جمع لوگ اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گھر میں بڑا اینٹیفالس بھی نوکروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ گیا تھا۔ نوکر اس کا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے وہ ہیکل کے باہر کھڑی بھیڑ میں چھپ گیا۔ پھر کپتان کی بیوی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے اسے پکڑ لیا اور خوشی سے بولی، مجھے اپنا شوہر مل گیا ہے، مجھے اپنا شوہر مل گیا ہے۔ پادری بھی وان فلس کو باہر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اسے کمرے میں چھپا رکھا تھا اور وہ باہر نکلتے ہوئے کھڑی تھی۔ پھر وہ باہر کیسے آیا؟ یہ سوچ کر اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور ننھے سے اینٹی فالس کو لے کر باہر آئی۔ آس پاس کھڑے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کپتان کی بیوی کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی اور کبھی پروہت کے ساتھ کھڑے وان فلس کی طرف۔ اس کا چہرہ خوف اور حیرت سے لبریز تھا۔ دو اجنبیوں کے چہرے، رنگت اور قد ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر کوئی اس راز کو جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی بادشاہ کا قافلہ اس طرف آیا۔ ایجین ایک قیدی کے طور پر ملبوس قیادت میں چل رہا تھا۔ ننھے اینٹی فالس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا۔ بیٹے کو دیکھ کر ایجان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ بڑا اینٹی فالس کچھ فاصلے پر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چونکہ اس نے بچپن سے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ باپ بیٹے کی یہ ملاقات دیکھ کر بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کیپٹن وان فلس کو بلایا اور اسے ایجین کی ساری کہانی سنائی۔ اب کیپٹن اینٹی فالس بھی جذباتی ہو گیا اور آگے آ کر اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ تب پاس کھڑی بوڑھی کاہن نے روتے ہوئے کہا، سوامی، اب کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد میرے بیٹے بھی مجھ سے دور ہو گئے، تب سے میں، آپ کی بدقسمت بیوی، آپ کی جدائی میں اپنے دن اذیت میں گزار رہی ہوں۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیوی کو دیکھ کر ایجین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تبھی دونوں ڈرومیوس بھی وہاں آ گئے۔ ایجیون اور اس کی بیوی نے بھی اسے پیار سے گلے لگائے۔ اس طرح ایجین اپنی بیوی اور چاروں بیٹوں کے ساتھ دوبارہ مل گیا۔ ادھر کپتان کی بیوی بھی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنی ساس کے پاؤں چھو کر آشیرواد لیا۔ ان میں جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ تب کیپٹن وان فلس نے بادشاہ سے دعا کی کہ وہ پورا جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے والد کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے بغیر کوئی جرمانہ ادا کیے ایجیون کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد پورا خاندان خوشی سے ایک ساتھ رہنے لگا۔